Good morning, my dear students. Hope that you will be well. My 11th standard students, as you know that in our inter college, the online classes are running on, and every teacher is taking interest deeply and interestingly they are teaching well. My dear students, today we will start the first lesson, approach the portrait of a lady. It's very important. Dear students, this lesson is written by Khushwant Singh and it is a autobiography of Khushwant Singh. Firstly, I will tell you about the Khushwant Singh. He was born in the year 1915 in Hadeli, Pakistan, and he died on March 20, 2014. He is most famous for his historical novel Train to Pakistan. My dear students, a famous novel was written by Khushwant Singh. It was the historical novel Train to Pakistan, and it was published in 1956. So, in short, we can say that he was a great literary person. He was educated at Government College of Lahore and at King's College, Cambridge University, and at the Inner Temple based in London. So, my dear students, now you can read it and study it very well. Very well. We can study it very well and pay attention to this lesson very well. First, the paragraph is Khushwant Singh is telling about his grandmother. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So, my dear students, as you know, the first इसमें रेफरेंस पूछा जाता है. रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. रेफरेंस क्या होता है बेटा? संदर्भ होता है. जैसे हिंदी में आप पढ़ते हुए आए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक उस लेसन से लिया गया है. इसी प्रकार से यहाँ पर ये लिखा जाता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह. ये इस तरह की बातें हैं. कॉन्टेक्स्ट होता है पर्सन, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में. खुशवंत सिंह ने कहा कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज़ ग्रैंड मदर, कि मेरी जो दादी थी वो ऐसी ही थी जैसे दूसरे लोगों की दादी होती है. लाइक एवरीबॉडी इज़ ग्रैंड मदर, ये बूढ़ी स्त्री थी, और थी जैसे दूसरों की दादियाँ होती हैं, ऐसे ही मेरी दादी थी.
सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वह बूढ़ी हो चुकी थी काफ़ी, और रिंकल्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों झुर्रियाँ पड़ी हुई थी फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से। जहाँ तक मैं उनको देख रहा हूँ तो वो काफ़ी ओल्ड थी और झुर्रियाँ उनके पड़ी हुई थी, अर्थात शरीर पर, चेहरे पर। आई हैड नॉन हर, जहाँ तक मेरे याद है मैं उनको जानता था, मैं उनसे परिचित था 20 सालों से। जब से मैं जानता हूँ वे बूढ़ी और झुर्रीदार थी, मतलब उनके और लोग कहते थे कि वे कभी जवान और आकर्षक रही थी। द पीपल सेड, लोगों ने कहा, पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, आकर्षक लगती थी वो देखने में। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और वो क्या था कि हस्बैंड भी, उनके एक हस्बैंड भी था, यहाँ तक कि उनके एक पति भी था। पर इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। यहाँ पर ये कुशल सिंह जी कह रहे हैं कि बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, ये मुश्किल था, इन बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वे कह रहे हैं कि मेरे जो दादाजी थे उनकी जो पोर्ट्रेट है, उनका चित्र है, उनकी तस्वीर है, वो हंग, लटकी हुई थी अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। जो ड्राइंग रूम था, हमारी बैठक थी, और जो उसकी अंगीठी थी, मेंटल पीस से यहाँ पर लगा गया है, उसकी जो चिमनी वाली अंगीठी जो ऊपर लगी हुई थी, चिमनी वाली अंगीठी पर वहाँ पर लटकी हुई थी वो तस्वीर, उनकी पोर्ट्रेट। अपने दादाजी के बारे में बोल रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही वॉर ए बिग टर्बन, और वो क्या पहने हुए थे, वियर की सेकेंड फॉर्म होती वॉर, वो पहने हुए थे टर्बान, पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके कपड़े बहुत ढीले ढाले थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनका जो लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, उनकी जो लंबी दाढ़ी थी वो कवर कर रही थी बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो छाती थी उसको भी कवर कर रही थी, अर्थात बहुत लंबी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और ऐसे लगते थे कम से कम कि वो 100 साल के हो। कितने साल के? ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। ऐसा लगता नहीं था कि वो उनके वो इस तरह के थे, देखने में ऐसे लग रहे थे, वैसे आदमी की तरह नहीं दिखते थे जिसके बीवी और बच्चे हों। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो इस तरह के आदमी नहीं लग रहे थे। यहाँ पर ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे लगते थे मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके बहुत सारे बच्चे हों, ग्रैंड चिल्ड्रन हों, पोते पोतियाँ हों ढेर सारे, अर्थात वो ऐसे दिखते थे कि और उनके केवल ढेर सारे पोते पोतियाँ ही हों, ऐसे नज़र आ रहे थे, बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और जो मेरी दादी जी थी वो बहुत ही यंग थी, प्रेटी थी, बहुत ही आकर्षक लग रही थी, ऐसा महसूस होता है। अर्थात ये क्या कह रहे हैं कि अब ये बात कि मेरी दादी जवान और आकर्षक रही होगी, इसे इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये दोबारा आप देखें इस बात को। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का मतलब यानी कि ये बात पच नहीं रही है, ये इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। इस बात पर यहाँ पर ये बात कही गई है कि इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यह विचार कि उसकी दादी मनोहर थी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता था। अर्थात द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, द थॉट दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज प्रेटी एंड डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, इस बात से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। रिवोल्टिंग यहाँ पर ये पॉइंट शुड बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होती है, तो एक पॉइंट टू पॉइंट समझिए। और एक्सप्लेन क्या होता है प्यारे बच्चों की, अपनी बात, किसी बात को अपनी भाषा में लिखना, उसको समझा के लिखना, डिटेल में लिखना। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह हमें कहानियाँ बताया करती थी, उसे बताती थी गेम्स के बारे में। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड,
वो हमें यही कहानियाँ बताया करती थी कि जैसे मैं बचपन में खेला करती थी, जिस तरह की मैं खेलती थी, इसी तरह की वो हमें कहानियाँ बताया करती थी, इसी तरह के खेलों के बारे में बताया करती थी, बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, जो कि बहुत ही बेतुका लगता था। अच्छा नहीं, अब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत बेतुका लगना, अच्छा नहीं लगना है, असंगत हो, जो अनरीजनेबल हो, उसके अब्सर्ड, अब्सर्ड लगना, ABSURD, अनरीजनेबल, असंगत। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है असम्मानित, डिग्निफाइड सम्मानित। अपियरिंग फुलिश एंड अनशीमिंगली, अनशीमली। तो ये मेरे लिए बहुत बेतुकी बात थी, असंगत बात थी, अनडिग्निफाइड थी, सम्मानित नहीं थी। अनडिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब सम्मान से लगाया जाता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर बताया अनडिग्निफाइड। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स एंड सी यूज्ड टू टेल अस। तो हमें यहाँ पर ये अशोभनीय जान पड़ता था, और हम इसे जैसा कि वो हमें बताया करती थी, पैगंबरों के किस्से कहानियों की तरह समझते थे। तो हम तो उसको एक कहानी समझते थे कि भाई प्रोफेट्स का मतलब PROPHETS, प्रोफेट्स का मतलब होता है जो पैगंबर होते हैं, जैसे इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब हैं, गौतम बुद्ध, इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में प्रोफेट्स। प्रोफेट्स, PROPHETS, प्रोफेट्स ही यूज टू टेल अस, ऐसी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक्सप्लेन करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसका पूरा डिटेल नॉलेज नहीं होगा, हिंदी में आप ट्राई करें इसको पढ़ने की, बार बार मेरे लेक्चर को सुने बार बार और प्रैक्टिस करें, तभी आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये आज आपके लिए होमवर्क है, और इसका एक्सप्लेन करें, जो इम्पोर्टेंट्स एक्सप्लेनेशन होंगे वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। Thank you very much, my dear students. Be happy.